Once again, welcome to all, and I request to Anmolji start the session. Very good evening to everyone. Is my voice audible? Yes, sir. Hello. So, a very good evening to everyone who has joined us today for this 11th Taxo Prime Time session. At the outset, I would like to thank Team Taxo for giving me this opportunity to deliberate on this very important session, a very important topic that we are going to discuss today, which has been a subject matter of litigation. I guess there is a volume problem. Is my voice audible now? Yes, sir. Is increased. Okay. Thank you, Alokji. So, I was talking about the topic today. So, the topic today is a very litigative, debatable, argumentative topic. A mechanism which was introduced by the government with an aim to curb the cases wherein the evasion of tax is being taken place. So, it was the intent of the government to bring a mechanism of e-way bill so that there may be cases wherein proper transfer of goods are being taking place, proper invoices are being issued, but tax is not being paid properly. So, in order to curb such like instances, government came up with an idea to bring e-way bill mechanism under GST, a mechanism which was not rigorously followed in earlier regime or which was not there in the earlier regime. Pankaji, is there still problem in the volume? I believe the volume. Is it sorted now? जी सर, आवाज़ तो सही आ रही है. Okay, okay. So without taking much of the time, let's quickly hop on to the presentation for the day. अनमोल जी, इसमें थोड़ा सा इको आ रहा है, मतलब आवाज़ थोड़ा सा, मतलब आवाज कम आ रहा है या इको आ रहा है? आवाज़ तो सही आ रही है, इको ज़्यादा आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रही है थोड़ी. Hello. हाँ जी सर, आवाज़ सही आ रही है. All right. So is my screen visible to all? Yes, sir. But your camera is off. Just a second. I believe the camera is on now. Yes, yes. So, sharing the screen, sharing the presentation. Is the screen visible now? Yes, sir. All right. So, coming to today's topic, I was saying that the topic for the day is a very debatable, very litigative topic. The topic which was a provision which was implemented and brought in by the Honorable Finance Ministry with the advent of GST, with the purpose to track down such cases wherein evasion of taxes is being taking place. So, as you all must be aware about, that this particular topic is a very big topic. This topic contains many provisions, many notifications, many circulars, and it is such a debatable topic that every, I would say, third or fourth judgment relates to e-way bill only. Besides cancellation of registration, fake invoices matters. E-way bill is one of the hot topics these days, wherein every, I would say, third or fourth judgment belongs to of the Honorable High Courts belongs to e-way bill only. So it is not possible for a topic to be concluded in a 1 hour session, which is as long as e-way bill. But the object of today's topic
is to give you a glimpse of what e-way bill is all about. What are the most important provisions everyone should be aware about? The procedure of interception of a conveyance and goods that one must be aware about in case he or she is dealing in e-way bill cases, or is dealing in an industry where there is a frequent movement of goods, and as well as the important judgments that have been recently announced, which give us a glimpse of what is the legislative intent behind bringing section 129, the most important section, under which the detention of vehicle as well as the goods take place by the proper officer. So we have bifurcated today's session into 4 major parts. First is the background and relevant provisions, I would say here. We are going to discuss a brief background of e-way bill provisions, which I believe you all must be aware about. Just a quick glimpse, as well as the relevant provisions I'm going to discuss, which lay down the foundation of the e-way bill mechanism. In the second topic, we are going to discuss the procedure laid down in e-way bill, the procedure of interception of this conveyance and goods. What is the procedure that has to be followed by the proper officer? So I see that in many cases the proper officer does not follow the proper procedure as laid down by the government. So as a matter of right, we all should know what is the procedure, what is the correct procedure, what are the relevant forms that have been laid down by the Honorable Ministry, by the CBIC board, so that in case, God forbid, any case happens, any vehicle or goods is intercepted by the proper officer, we all should know our rights. Then coming to the third and fourth part, these are the judgments that we are going to discuss. The third part deals with the judgment wherein all the documentation was complete, but there was a discrepancy in valuation of goods. So whether discrepancy in valuation goods, where the officer sees that there is a discrepancy in valuation of goods, is of the opinion that there is a discrepancy in valuation of goods, whether he can make such a reason as a valid reason for detention of goods under section 129. And the fourth topic deals with a circular that was issued in 2018 by the board, wherein some clerical mistakes were pointed out. That yes, there are 6 clerical mistakes, and in case there are 6 clerical mistakes in the documents which are being accompanied with the conveyance, the consignment and movement, then there was a small minuscule amount of penalty that was prescribed by the board, and in which case there is no need to invoke detention provisions under section 129. So we are going to discuss in the fourth topic that what discrepancies are regarding as the minor discrepancies, in which case a minuscule amount of the penalty should be levied and not the hefty penalty as prescribed in section 129, as well as the rigorous procedure, strict procedure that has been prescribed for detention of goods and conveyance as prescribed in section 129. So moving on to the first topic of the day, background and relevant provisions. So in the background, a very glimpse of how the e-way bill provisions were brought in. So 16th Jan 2018, government introduced e-way bill system on a trial basis. As you all must be aware that from 1st of April 2018, e-way bill was made compulsorily, mandatorily for interstate movements. However, for intrastate movements, after 1st of April 2018, states were given their own timelines that yes, you can bring in provisions for intrastate movement also as per your convenience. So every state brought provisions for applicability of e-way bill provisions in a phased manner, being Delhi the last state which brought the provisions of e-way bill for intrastate movement on 16th of June 2018. So we can say that by 16 June 2018, e-way bill was made fully applicable mandatorily for all the states of this country. Now coming to some of the relevant provisions that are there in the e-way bill mechanism, the most important provision which is the charging
provision, I must say, which is the provision which gives the power to the government, to the proper officer to conduct inspection and interception, is section 68. तो सेक्शन 68 सर बोलता है, आपको पावर देता है टू इंस्पेक्ट अ व्हीकल इन ट्रांजिट एंड टू प्रिस्क्राइब रूल्स देयरफॉर along with power to prescribe rules for carrying e-way bill and manner of verification. तो जितने भी आपके रूल्स हैं जो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखे, ये सारे आपके सेक्शन 68 से पावर ड्रॉ करते हैं और इनको सेक्शन 68 के तहत लाया गया. तो यहां पे मैं एक छोटी सी चर्चा आपसे करना चाहूंगा. हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, जो हमने पहले इससे पहले जो हमने सेमिनार्स किए, वेबिनार्स किए टैक्स प्राइम टाइम के, हमने उसमें 5th या 6th प्राइम टाइम के सेशन में हमने डिस्कस किया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को अपने सुपीरियर लेजिस्लेशन से इट हैज ऑलवेज टू बी इन कॉन्सोनेंस, इन लाइन विद द सुपीरियर लेजिस्लेशन. इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. तो सर जितने भी रूल्स मैंने नीचे लिखे 2nd से लेके 6th नंबर तक, ये सारे रूल्स मेरे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में फॉल करते हैं, जिनकी पावर सेक्शन 68 ने दी है. और ये सेक्शन 68 के बियॉन्ड नहीं जा सकते. अगर जाएंगे तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा वायरस कहा जाएगा. उसके लिए हाई कोर्ट कभी ना कभी उसको सेट असाइड कर देगा, उसको स्ट्रक डाउन कर देगा एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा वायरस. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेक्शन 68 जो है बड़ा छोटा सा सेक्शन है, मैं आपसे आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा. But the importance of section 68 can be understood from this, that entire e-way bill mechanism, all the notifications, circulars, rules, everything comes under section 68. Any circular, any notification, any rule which is beyond section 68 will always be held as ultra virus and unconstitutional and can be struck down by the Honorable High Court using powers under Article 226 of Constitution of India. तो इसलिए हमारा सेक्शन 68 अगर हम समझे तो वो पावर देता है आपको एक व्हीकल को इंटरसेप्ट करके इंस्पेक्ट करने की, आपको रूल्स बनाने की. रूल्स किस लिए कि कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लिए जाएंगे और कैसे वेरिफिकेशन आपकी होगी. रूल 138 आपको बताता है कि फॉर्म कौन सा होगा ई-वे बिल का और मैनर कैसे होगा ई-वे बिल का. 138 आपको बताता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स व्हीकल इंचार्ज, जो कि हमारा जनरली ड्राइवर रहता है, उसको कैरी करने हैं. रूल 138 आपके बताता है कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और कन्वेंस किस तरीके से होगा, डॉक्यूमेंट्स और कन्वेंस का. रूल 138 बोलता है जो फिजिकल वेरिफिकेशन हमारी होती है वो उसके लिए बात करते हैं कि इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स कैसे होगा. रूल 138 आपको बोलता है कि आपको जो डिटेंशन करने के दौरान डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो कैसे अपलोड करने हैं और क्या आपका मैकेनिज्म है. इसी के साथ साथ जब आपका सेक्शन 68 में इंस्पेक्शन होता है, इंटरसेप्शन होता है, उसके बाद आपका सेक्शन 129 में प्रोसीडिंग्स आती हैं जो बोलती है डिटेंशन, सर्च एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिशन. तो अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट को लगता है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि देयर इज एनी वायलेशन ऑफ सेक्शन 6 प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68, he may proceed for section 129 in order to detain the vehicle or the conveyance or the goods. Now section 130 deals about the confiscation of goods, where I'm going to talk about the procedure in next few slides. That after invocation of section 129 detention, if there is no resolve between proper officer and the assessee, then the proper officer is empowered to move on to section 130, that is confiscation of your goods. Then the property of your goods lies with the government. Then there is a section 122 which is a penalty for certain offenses. तो अगर आपका ई-वे बिल का कोई पेनल्टी की बात आती है तो सेक्शन 122 पे आप जाते हैं. देन देयर आर 2 रूल्स, इसके बारे में बहुत कम मैं देखता हूं एसएससीज को पता होता है, रूल 140 और रूल 141. तो सर आपका जो प्रोसीजर एक सर्कुलर के द्वारा लाया गया 15th नंबर पे हमने 12th नंबर पे हमने जो सर्कुलर लिखा है जिसमें एक डिटेल्ड प्रोसीजर लाया गया, उसमें बोला गया है कि आप बॉन्ड और सिक्योरिटी फर्निश करके अपने गुड्स रिलीज करा सकते हैं प्रोविजनली और केस आप बाद में लड़ते रहेंगे. तो वो बॉन्ड सिक्योरिटी कैसे रिलीज करेंगे, कौन सी रिलीज करेंगे, कितने अमाउंट की रिलीज करेंगे, वो रूल 140 और रूल 141 में डील किया गया. देन serial number 12, 13 and 14 of this table talks about a circular, the main circular being circular number 41 of 15 of 2018, dated 13th of April 2018, a very long and a very detailed circular which talks about the procedure
with reference to interception, detention, seizure and confiscation along with release of the vehicle as well as the goods. This circular was amended by the circulars listed at serial number 13 and 14 of this table. And then there is a circular, a very important, I would say a circular which has come to the rescue of many assessees. Otherwise, all the cases wherein even a small mistake is there, all such cases will lie under section 129 detention. All such cases will be subject to a strict mechanism of detention under section 129. So a circular number 64 of 38 of 2018 dated 14th of September 2018 was brought in, wherein certain minor discrepancies were noted by the Honorable Board CBIC and related penalty was prescribed, and it was said that no, in all such 6 cases you need not go into detention proceedings. You just release the goods after taking a minuscule penalty as prescribed in this circular. We are going to discuss this circular as well as the case laws on this circular, that how to read this circular, whether those 6 cases are the strict cases that only in these 6 cases there is that minuscule penalty, other than these 6 cases, if there is any other case, you have to go to section 129 for detention proceedings. Or this circular, these 6 cases have to be studied in a very broader ambit in order to understand the legislative intent. We are going to discuss those case laws in next few slides. Now coming, as I told you, कि सर सेक्शन 68 जो CGST एक्ट का है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. वो हमारा पूरा फ्रेमवर्क, पूरा एक बाउंड्री सेटअप कर देता है कि हाउ यू आर गोइंग टू डील विद ई-वे बिल प्रोविजंस. तो सेक्शन 68 क्या कहता है? सेक्शन 68 का सबसेक्शन 1 हम पढ़ते हैं. द गवर्नमेंट में रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस, दैट इज द ड्राइवर, कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग सच अमाउंट. तो हर स्टेट ने अपनी अपनी अमाउंट डिफाइन करी है. इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमाउंट डिफाइन करी है. एज मे बी स्पेसिफाइड टू कैरी विद हिम सच डॉक्यूमेंट्स एंड सच डिवाइसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो आप सर इस पॉइंट को पाक कीजिएगा जो मैंने अंडरलाइन किया है कि सेक्शन 68(1) बोलता है कि हम आपको फर्दर 68(2), 3 में, 138 में जितनी भी हम आपको पावर्स दे रहे हैं इंटरसेप्ट की, इंस्पेक्शन की, वो किस लिए है? वो सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 में बोलता है कि वो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने के लिए और डिवाइसेस कैरी करने के लिए है, जो हम आपके आगे प्रिस्क्राइब करेंगे रूल्स में, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको इनवॉइसेस कैरी करने हैं, आपको ई-वे बिल कैरी करने हैं और 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको केस टू केस बेसिस पे कैरी करने हैं. तो यहां पे मैं इसको आगे अपने केस लॉज में डिस्कस करूंगा. कमिंग टू दी सबसेक्शन 2, the subsection 2 says the details of documents required to be carried under subsection 1 shall be validated in such manner as may be prescribed. तो प्रोसीजर जो उन्होंने, अगर इंस्पेक्ट आपका इंटरसेप्ट कर लेते हैं आपका व्हीकल, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर प्रॉपर ऑफिसर को एम्प्लॉय करना है टू कंडक्ट दी प्रॉपर इंक्वायरी, उसकी पावर जो है वो दी गई है. उसको रूल्स को फ्रेम करने की पावर सबसेक्शन 2 में 68 के. सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? वेयर एनी कन्वेंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 is intercepted by the proper officer at any place, he may require the person in charge of the said conveyance to produce the documents prescribed under said subsection and devices for verification, and the said person shall be liable to produce the documents and devices to allow and also allow the inspection of goods. तो सर फर्स्ट में क्या बात करी? फर्स्ट में आपको बोला गया है कि हम आपको रूल्स लाने की पावर दे रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको हर व्हीकल के साथ एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के द्वारा हर व्हीकल में आपको जो है कैरी करने की जरूरत है. सबसेक्शन 2 में बात करी गई कि आपको कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे वैलिडेट किए जाएंगे वो बताया गया. और सब सेक्शन 3 में आपको पावर दी गई कि अगर आपको कोई इंटरसेप्ट करके फिजिकल इंस्पेक्शन करने की जरूरत है कन्वेंस की, गुड्स की, तो उस केस में उसको कैसे किया जाएगा वो रूल्स में आपको बताएंगे. ये सब रूल्स में सर बताया गया. रूल्स बहुत इलेबोरेटिव है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए मैंने रूल्स को डिस्कस नहीं करा. लेकिन सेक्शन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फ्रेमवर्क, एक बाउंड्री ले डाउन करता है, तो हमने जो है सेक्शन को डिस्कस किया. नाउ कमिंग टू द सर्कुलर दैट आई हैव जस्ट डिस्कस्ड, व्हिच सेज व्हाट आर द माइनर डिस्क्रिपेंसीज एंड व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी शुड बी लेविड इन केस ऑफ माइनर डिस्क्रिपेंसीज. सो द सर्कुलर नंबर इज 64/38/2018 dated 14th of September 2018.
What are the minor discrepancies that have been prescribed in circular? The number one minor discrepancy is spelling mistake in the name of consignor or the consignee, but the GSTN remains the same. अब आप सर ये बोलेंगे कि आज की डेट में तो ये हो ही नहीं सकता, जैसे मैं जीएसटी नंबर डालता हूं उसका नाम ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो सर ये सर्कुलर जो है 2018 का आया हुआ है, तब मैनुअली होता था, अब नाम भी मैनुअली डालते थे, जीएसटी नंबर भी मैनुअली डालते थे। आज आपके जीएसटी नंबर से ऑटोमेटिकली उठाता है, लेकिन तब की बात है कि अगर आपने कोई नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, एबीसी लिमिटेड की जगह एबीडी लिमिटेड लिख दिया, लेकिन आपका जो है जीएसटी नंबर से सही है, बिल्कुल सेम है जो एबीसी लिमिटेड का था, तो आपको माइनर डिस्क्रिपेंसी मानी जाएगी। सेकंड बोलता है कि आपका जो कंसाइनर का जो जिसके पास आपको डिलीवरी करनी है गुड्स की, आपने उसका एड्रेस सही लिखा है लेकिन उसका पिन कोड गलत लिख दिया, और उस पिन कोड से वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल जो है एक्सटेंड नहीं हो रहा। तो सर आप सबको पता होगा कि पिन कोड से मेरी वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल डिसाइड होती है, तो जिस पिन कोड से जिस पिन कोड पे जा रहा है उसके हिसाब से किलोमीटर का डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, और उन किलोमीटर के हिसाब से आपके 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की वैलिडिटी जो है ई वे बिल की डिसाइड होती है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई पिन कोड डाला, 110085 डालना था, 84 डाल दिया, आसपास है, कोई बहुत ज्यादा किलोमीटर का फर्क नहीं पड़ा, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल एक्सटेंड नहीं हुई, लेकिन जो एड्रेस डाला था वो कंसाइनर का बिल्कुल सही डाला था, कंसाइनर कंसाइनी दोनों का एड्रेस बिल्कुल सही डाला था, बस पिन कोड गलत कर दिया था जिससे वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल एक्सटेंड नहीं हुई, तो उस केस में भी बोला गया कि ये माइनर डिस्क्रिपेंसी है। उसके बाद सी पॉइंट जो है, इस सी पॉइंट को सर ध्यान दीजिएगा, बी और सी को पाक करके रखिएगा, आगे के केस लॉज में इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाला हूं। सी पॉइंट बोलता है कि आपने कंसाइनी का एड्रेस गलत लिख दिया, लेकिन जो लोकेलिटी है वो सही है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको एड्रेस लिखना था C9 सुशांत लोक फेज 1 सेक्टर 43, आपने एड्रेस लिख दिया C10 सुशांत लोक फेज 1 सेक्टर 43। तो सर उस केस में आपने सिर्फ जो घर का एड्रेस है, जो ऑफिस का एड्रेस है, जो प्लॉट का एड्रेस है, आपने वो C9 की जगह C10 लिख दिया, लेकिन आपकी लोकेलिटी जो है वो पूरी की पूरी सेम है। आपका सुशांत लोक फेज 1 है, सेक्टर 43 है, सी ब्लॉक है, आपने सब कुछ सही लिखा, बस जो एग्जैक्ट लास्ट का एड्रेस था वो आपने गलत लिख दिया, तो उस केस में बोला गया माइनर डिस्क्रिपेंसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोर्थ डिस्क्रिपेंसी बताई गई कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नंबर में 2 डिजिट्स में 1 या 2 डिजिट तक मैक्सिमम आपके कोई गलती है, जैसे एग्जांपल है ई-वे बिल में आपने इनवॉइस नंबर लिखा और इनवॉइस नंबर आपका था 2469 और आपने उसकी जगह पे लिख दिया 2470, तो अगर मान लीजिए आपका एक नंबर आगे बढ़ गया, इनवॉइस नंबर 2 डिजिट्स तक आपका जो है एरर आ गया, उसमें कुछ इशू आ गया, लेकिन आपका इनवॉइस सही कैरी कर रहे हो, इनवॉइस ई-वे बिल से मैच कर रहा है, गुड्स मैच कर रहे हैं जो एक्चुअल में मूवमेंट हो रही है, तो आपको बोला गया कि माइनर डिस्क्रिपेंसी है। फिफ्थ डिस्क्रिपेंसी आपकी बोली गई कि अगर आपके 6 डिजिट या 4 डिजिट का आप HSN कोड यूज कर रहे हैं और पहले 2 डिजिट्स आपके जो है वो सही है, लेकिन अगले 2 या अगले 4 डिजिट्स मतलब कि 4th या 6th डिजिट तक अगर आपका जो है गलत हो गया। अब इसका इंटेंट अगर हम समझे तो सर पहले 2 डिजिट हमेशा आपका चैप्टर बताते हैं कि किस चैप्टर में आपके गुड्स फॉल कर रहे हैं, फर्दर जो 2 डिजिट है वो सब चैप्टर बताते हैं और लास्ट के 2 डिजिट जो है वो आपके फर्दर डिटेलिंग में और आगे ले जाते हैं। तो अगर सरकार ये कहना चाह रही है कि अगर मान लीजिए आपके पहले 2 डिजिट सही है, मतलब आपने चैप्टर सही बताया कि किस चैप्टर में आपके गुड्स फॉल करते हैं, और अगले 2 डिजिट्स या 6 डिजिट आपके जो है गलत हो गए, 4 डिजिट या 6 डिजिट आपके गलत हो गए, तो उसको हम मानेंगे। और आपका रेट ऑफ टैक्स भी अगर सही है, 2 डिजिट चैप्टर भी सही लिखा, रेट ऑफ टैक्स भी सही लिखा, तो हम आपका मानेंगे माइनर डिस्क्रिपेंसी है, 4 या 6 डिजिट लिखने में आपसे गलती हो गई है। और फिफ्थ जो 6th लास्ट माइनर डिस्क्रिपेंसी का केस बताया गया, वो बताया गया कि अगर आपका 1 या 2 डिजिट का कैरेक्टर का डिफरेंस है व्हीकल नंबर में, जैसे HR 26CC0400 आपका व्हीकल नंबर है और आपने 0600 लिख दिया, तो आपका एक डिजिट में जो है फर्क आया, 400 की जगह 600 लिख दिया, तो उसको माइनर डिस्क्रिपेंसी बोला गया। यह एग्जांपल है, आपने HR की जगह HR 26CC की जगह CL लिख दिया, तो आपके अल्फाबेट में अगर 1 या 2 अल्फाबेट तक आपका अगर डिजिट या अल्फाबेट में आपका दिक्कत है व्हीकल नंबर के, तो वो बोलते हैं माइनर डिस्क्रिपेंसी है, जिसके केस में 500 रुपए CGST और 500 रुपए SGST और 1000 रुपए IGST, अगर IGST का केस है तो वो लगा के बोला गया कि आप छोड़ दोगे, आप सेक्शन 129 की प्रोसीडिंग्स नहीं करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 129 ऑफ द CGST एक्ट मे नॉट बी इनिशिएटेड इंटर अलिया इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो सेक्शन 129 की प्रोसीडिंग्स इन 6 इश्यूज में नहीं हो सकती। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट नोट करने की है सर, उसमें ये लिखा हुआ इंटर अलिया, इंटर अलिया का इंग्लिश मीनिंग निकालें तो वो बोलता है अमंग अदर्स। तो दिस वर्ड इंटर अलिया इटसेल्फ डिनोट्स
कि ये 6 इश्यूज सिंपल 6 इश्यूज नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये 6 होंगे तो ही मैं आपका जो है 500 रुपए की पेनल्टी लगाऊंगा, नहीं तो सेक्शन 129 में ले जाऊंगा। हम आगे इसके केस लॉज भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इन 6 इश्यूज को इतने ब्रॉडर एम्बिट में एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट की तरह पढ़ेंगे। ये 6 इश्यूज सरकार ने एज एन इलस्ट्रेशन दी है कि अगर ऐसा मिलता जुलता कोई केस है तो आप उस केस में बोलिए कि नहीं जी माइनर डिस्क्रिपेंसी है, बोनाफाइड डिस्क्रिपेंसी है, मिस्टेक है, आप 500 रुपए की पेनल्टी लगा के जो है गुड्स छोड़ दीजिए। नाउ कमिंग टू द प्रोसीजर दैट हैज बीन लेड डाउन बाय द बोर्ड थ्रू प्रोसीजर given through circular number 41/15/2018 dated 13th April 2018. अब सर नेक्स्ट 3 स्लाइड्स को मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि नेक्स्ट 3 स्लाइड्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। 5 मिनट मेरे को आपकी सबकी अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए सर। 5 मिनट में मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर जो सर्कुलर के 10-15 पेजों में लिखा हुआ है, मैं आपको 5 मिनट में सारा प्रोसीजर समझा दूंगा सर। प्रोसीजर क्या कहता है सर? चार्ट के अलावा सर मेरे उस पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले सर आपका ट्रक को इंटरसेप्ट करने की पावर सेक्शन 68 रेड विद रेलेवेंट रूल आपको दी गई है। तो अगर मान लीजिए आपका माल ए जगह से बी जगह पे जा रहा है और रास्ते में आपका माल इंटरसेप्ट हो गया, तो अब ये सर्कुलर बताता है कि आपको क्या प्रोसीजर जो है फॉलो करना है। तो सबसे पहला प्रोसीजर बोला गया है कि एमओवी 01 में आपको जो पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस है, जो कि ड्राइवर है, आपको उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। एमओवी 1 में अगर मान लीजिए आपने ट्रक इंटरसेप्ट किया, आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे, पर्सन इंचार्ज ने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आपको लगा डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी है, आपको लगा कुछ गड़बड़ है और आपने फर्दर वेरिफिकेशन करने की सोची, इंस्पेक्शन करने की सोची, तो आपका प्रोसीजर बोलता है कि सबसे पहले आपको एमओवी 01 में पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। सेकेंडली, अगर आपको जरूरत लगे और आप कहो कि मैं इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन करना चाहता हूं, तो एमओवी 02 जो है फॉर्म दिया गया, जिसमें आप एक ऑर्डर इशू करेंगे, जिसमें आप समय और डेट और जगह, ये 3 चीजें आप लिखेंगे कि आप अपना माल और कन्वेंस लेके वहां पे पहुंच जाइए और मैं उतने बजे आपका उस जगह पे उस डेट पे मैं आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है कन्वेंस की करूंगा। जनरली आप देखेंगे केसेस में ये होता है कि आज माल पकड़ा तो कल सुबह सुबह 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट डे इमीडिएटली जो है जनरली फिजिकल वेरिफिकेशन वो कर देते हैं। अब फिजिकल वेरिफिकेशन करने के 24 आवर्स में पार्ट ए ऑफ ईवे बिल 03 में, EWB 03 में प्रॉपर ऑफिसर को एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन दैट ही हैज कंडक्टेड, ही हैज टू इशू दैट। आप देखेंगे कुछ केसेस में आजकल ये नहीं होता है सर। देन 3 दिन की टाइम लिमिट दी गई है सर। जिस दिन एमओवी 2 इशू कर दिया कि मैं अब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, उससे 3 दिन में आपको पूरी फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स जो है आपको अपनी कंक्लूड कर देनी है। कंक्लूजन करने के बाद सर आपका एमओवी 4 में आपको रिपोर्ट देनी है फिजिकल वेरिफिकेशन की पर्सन इंचार्ज को। तो एमओवी 4 में आपको जो है, जो कन्वेंस इंचार्ज है, जो पर्सन इंचार्ज है ड्राइवर, उसको फिजिकल फॉर्मेट में आपको एक कॉपी देनी है। और साथ ही साथ 3 दिन जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के, आपको जो है ईवे बिल 3 में जो आपने पार्ट ए में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट डाली थी, पार्ट बी में आपको फुल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो है सबमिट कर देनी। तो ये भी एक ऐसा फॉर्म है जो मैं देखता हूं जब कोई हमारे पास अपील के लिए आता है या कोई हमारे पास केस लड़वाने के लिए आता है, तो उसके पास एमओवी जनरली EWB 3 कभी भी अवेलेबल नहीं होता है। तो अपने को अगर सर आपका कोई भी ऐसा केस लगता है, गॉड फॉरबिड, तो आपको उस केस में EWB 3 जो है ऑफिसर को बोल के आपको इशू करवा लेनी चाहिए कि सर आप कॉमन पोर्टल पे ये EWB 3 में पार्ट ए और पार्ट बी में अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट प्रॉपर सबमिट करी। एमओवी 4 अवेलेबल होता है सर, लेकिन EWB 3 जनरली नहीं मिलता है सर। तो मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड को, जो हमने अभी तक आधा प्रोसीजर डिस्कस किया, वो क्या डिस्कस किया कि अगर मान लीजिए कोई गुड्स इंटरसेप्ट हुए, कन्वेंस इंचार्ज ने आपको वो दे दिए डॉक्यूमेंट्स, आपको लगा ये डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, आपने कहा मैं इसको इंस्पेक्शन करूंगा, तो सबसे पहले एमओवी 1 में हमने बोला कि आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे।
एमओवी 2 में हमने बोला कि आप एक डेट, डे और टाइम और प्लेस आप जो है डिफाइन करेंगे कि कब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, और पर्सन इंचार्ज उस टाइम पे कन्वेंस और गुड्स लेके आपके पास पहुंच जाएगा। उसके बाद हमने बात करी कि एमओवी 2 फिजिकल वेरिफिकेशन का ऑर्डर जो है आपने सबमिट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पे अपलोड करनी है EWB 03 फॉर्म के पार्ट ए में, और 3 दिन में आपको जो है एमओवी 2 के इशू करने के 3 दिन में आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग जो है कंप्लीट करनी है, जिसमें आपको एमओवी 4 पर्सन इंचार्ज को फिजिकल हार्ड कॉपी देनी है, आपकी रिपोर्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, और फाइनल रिपोर्ट जो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन की है वो EWB 03 के पार्ट बी में भी आपको कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर देनी है। अब सर, वंस द फिजिकल वेरिफिकेशन हैज बीन कंक्लूडेड, तो हमने पहला पार्ट क्या डिस्कस किया, हम इसको 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला फिजिकल वेरिफिकेशन, दूसरा डिटेंशन और तीसरा कॉन्फिस्केशन। तो हमने पहला डिस्कस किया फिजिकल वेरिफिकेशन, जिसमें हमने फॉर्म्स क्या डिस्कस किए, मैं आपको साथ साथ रिवाइज कराता चल रहा हूं। एमओवी 1 स्टेटमेंट, एमओवी 2 ऑर्डर ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, EWB 3 का पार्ट ए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, एमओवी 4 फाइनल रिपोर्ट इन हार्ड कॉपी टू द पर्सन इंचार्ज, और EWB 3 का पार्ट बी फाइनल रिपोर्ट जो ऑनलाइन पोर्टल पे उसको 3 दिन के अंदर अंदर अपलोड करनी है फिजिकल वेरिफिकेशन की फाइनल रिपोर्ट के साथ। अब सर ये सब करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मेरे को डिस्क्रिपेंसी मिली। Once physical verification has been completed, inspection has been completed, there can be 2 scenarios. One, a discrepancy is found by the proper officer, and 2, a discrepancy is not found by the proper officer. Where there is no discrepancy found by the proper officer, he says that no, documents were complete, physical verification is proper, everything is in order. Then he has to release the goods as well as the conveyance by passing an order इन रिलीज ऑर्डर इन एमओवी 5। तो एमओवी 5 आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ये रिलीज ऑर्डर को ही पर्टेन करता है, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हैं, आप फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद रिलीज कराते हैं, आप डिटेंशन के बाद रिलीज कराते हैं, या आप कॉन्फिस्केशन के बाद रिलीज कराते हैं, आप किसी भी स्टेज पे रिलीज कराएं, एमओवी 5 जो है पास होगा। अब सर सेकंड सिनेरियो जो मोस्टली केसेस में हो जाता है, डिस्क्रिपेंसी कुछ ना कुछ प्रॉपर ऑफिसर निकाल देता है। अब वंस ही हैज फाउंड अ डिस्क्रिपेंसी to his satisfaction that there is any discrepancy in physical verification or inspection, he has to do 2 things. One, he has to serve a detention order under section 129 in MOV 06. Second, he has to pass a notice in MOV 07 wherein he will quantify the amount of tax and penalty that is payable by the concerned persons. सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 आपको सिनेरियोज देता है कि अगर जिसके गुड्स है, ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड टू पे द ड्यूटी, तो कितनी पेनल्टी लगेगी, और अगर अदर देन ओनर ऑफ द गुड्स अगर इफ ही कम्स फॉरवर्ड टू पे द ड्यूटी, तो उस केस में पेनल्टी कितनी लगेगी। तो 129(3) के हिसाब से उसको क्वांटिफाई करना है और एक नोटिस इशू करना है कि आपके इतना डिमांड, आपका डिमांड जो है इतना बनता है, टैक्स और पेनल्टी आपका इतना बनता है, इसमें इंटरेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है, टैक्स और पेनल्टी की बात है। अब सर मैं पहले बात करता हूं एमओवी 7 की। Once a notice has been issued in MOV 7, you have the option to file reply to MOV 7. MOV 7 is just like a show cause notice कि आपको एक शो कॉज नोटिस इशू हो गया कि हम आप पे इतना टैक्स और पेनल्टी क्यों ना लगाएं। आपने उसका रिप्लाई फाइल किया, रिप्लाई में आपने बताया कि सर मेरी ये डिस्क्रिपेंसी बनती नहीं है, कुछ केस लॉज कोर्ट करे, अपना केस लड़ा। आपके रिप्लाई के बेसिस पे MOV 9 जो है एक ऑर्डर पास होता है जिसमें आपका टैक्स और पेनल्टी क्वांटिफाई किया जाता है, या तो आपका ड्रॉप कर देंगे या आपका कंफर्म कर देंगे। तो SCN आपका आया जिसमें बोला टैक्स पेनल्टी इतना आपका बनता है, क्यों ना आप पे लगाया जाए। आपने रिप्लाई फाइल किया और आपके रिप्लाई के बेसिस पे एक ऑर्डर पास हो गया जिसमें बोला गया कि आपका बनता है या आपका नहीं बनता है। अब सर जो डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ था उसमें क्या होएगा, अगर मान लीजिए आपने डिटेंशन ऑर्डर पास होने के बाद आपने कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करे MOV 7 के भी, और आपने मान के जमा करा दिया टैक्स, तो उस केस में आपके गुड्स रिलीज हो जाएंगे MOV 5 में। लेकिन अगर मान लीजिए अभी मैं आपको जमा कराने के सर 2 ऑप्शन है, जो दूसरा ऑप्शन जनरली सारे टैक्स पेयर्स एक्सरसाइज करते हैं वो है कि आपको प्रोविजनली टैक्स पे कर सकते हो। 2 तरीके से पे कर सकते हो सर। पहला, आप डेबिट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर को DRC 3 के थ्रू,
और आप उसको जमा करा के ऑफिसर को दे सकते हैं और ऑफिसर आपको जो है रिलीज कर देगा और हम बाद उसकी अपील लड़ते रहेंगे, केस लड़ते रहेंगे। दूसरा ऑप्शन जो सर सर्कुलर में ही दिया हुआ है लेकिन डिपार्टमेंट मानता नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर नहीं मानता है सर। आप देखेंगे आज के डेट में बहुत हाई कोर्ट की जजमेंट्स है जिनमें एसएससी हाई कोर्ट सिर्फ इसी के लिए गया कि सर मेरे को गुड्स रिलीज कराने हैं, मैं बॉन्ड और सिक्योरिटी देने को तैयार हूं, आप इनको ऑफिसर को बोलिए कि बॉन्ड सिक्योरिटी के बेसिस पे रिलीज कर दे। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास पेमेंट मेथड यही है कि यू कैन प्रोविजनली पे द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी एज असर्टेन्ड बाय द ऑफिसर बाय फर्निशिंग अ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी। बॉन्ड आपका एमओवी 8 में फर्निश होता है और सिक्योरिटी आपकी बैंक गारंटी की फॉर्म में फर्निश होती है। तो अगर मान लीजिए आपका, मैं वापस आता हूं, डिटेंशन हो गया एमओवी 6 में, उसके बाद आपका टैक्स या तो आप पे करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप पे करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फाइनली पे कर दीजिए मान के कि यार चल छोटी सी अमाउंट है 50,000 रुपए की, लेट से अपना जमा कराओ और रिलीज कराओ, गुड्स काम करते हैं आगे बिजनेस चलाते हैं। या अगर अमाउंट ज्यादा है आप पे करिए, आप डीआरसी 3 में लिखिए अंडर डिस्प्यूट हम जो है पे कर रहे हैं रिलीज कराने के लिए, और बाद में आप अपील कर लीजिए। अगर आप केस जीत जाते हैं तो आप अपना रिफंड ले लीजिए। या फिर दूसरा प्रोविजनल का मैकेनिज्म जो सर्कुलर में ही दिया हुआ है कि आप बॉन्ड एमओवी 8 में दीजिए और सिक्योरिटी बैंक गारंटी में दीजिए। देयर मे बी केसेस प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू, जब प्रॉपर ऑफिसर मानेगा, बोलेगा कि नहीं मैं आपका बॉन्ड सिक्योरिटी नहीं मानता, आप तो टैक्स पे करोगे तो ही मैं छोड़ूंगा। तो उस केसेस में अगर क्वांटम इतना ज्यादा है कि आप टैक्स पे नहीं करना चाह रहे हैं, कि आपको लगता है बाद में रिफंड में मेरे को झंझट में पड़ना पड़ेगा, तो आप हाई कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शनल अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि सर डिस्क्रिपेंसी कोई बहुत ज्यादा बड़ी है नहीं, मेरिट्स पे केस मेरा बनता है। आप मेरिट्स पे डिसाइड मत कीजिए, बट उसको डायरेक्शन दे दीजिए प्रॉपर ऑफिसर को कि बॉन्ड और सिक्योरिटी के केस में मेरे को जो है गुड्स रिलीज कर दिए जाए और मैं केस बाद में लड़ता रहूंगा अपने। अब दूसरा सिनेरियो आता है, ये तो हो गया आपने जमा करा दिया प्रोविजनली या फाइनली। अब दूसरा सिनेरियो आता है जहां पे टैक्स और पेनल्टी आप 7 दिन में नहीं देते हैं। अब सर ध्यान दीजिएगा, रिसेंट अमेंडमेंट आई थी 2019 में, जब ये 7 दिन को 14 दिन कर दिया गया था। तो ये जो चार्ट है इसमें आप इस 7 दिन को 14 दिन पढ़िएगा। तो अगर आपका टैक्स या पेनल्टी 14 दिन में नहीं दिया जाता है डिटेंशन के अंडर, तो आपको सेक्शन 130 में कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट की जाएगी। अब सर आपका एक क्वेश्चन होगा कि दो पैरेलल प्रोसीडिंग्स चल रही है, डिटेंशन की भी नोटिस की भी। अब अगर मान लीजिए नोटिस वाली प्रोसीडिंग्स 14 दिन में कंक्लूड ही नहीं करी इसने, तो मेरा तो टैक्स पेनल्टी में क्यों दूंगा, मेरे को तो ऑर्डर आने के बाद देना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, तो मैं आपको सर बताना चाहूंगा, प्रैक्टिकली ये प्रोसीडिंग्स 2 से 3 दिन में पूरी की पूरी कंक्लूड हो जाती है। आपका खुद का कभी केस लगाओ तो आपको ये बात पता होगी। हार्डली सर दो घंटे में आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, इंस्पेक्शन होती है, 2 घंटे में नोटिस इशू हो जाता है, 2 घंटे में आपका ऑर्डर इशू हो जाता है रिप्लाई करके। क्योंकि सामने वाला भी समझता है कि आपको गुड्स पहुंचाने की अर्जेंसी कितनी ज्यादा है, आप वहां पे गुड्स 2 दिन 3 दिन खड़ा करके नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए प्रोसीजर सर 2 दिन में 1-2 दिन में आपका जो है क्लोज हो जाता है। कहां तक क्लोज हो जाता है, आपका ऑर्डर एमओवी 9 में पास हो जाता है, जिसमें आपका टैक्स पेनल्टी फाइनली असर्टेन हो जाता है। आप उसके बाद उसकी अपील फाइल कर सकते हैं। तो अब मैं इस स्लाइड को दोबारा से सम अप करता हूं। पुरानी स्लाइड में हमने बात करी फिजिकल इंस्पेक्शन की। तो वंस फिजिकल इंस्पेक्शन हैज बीन डन, आइदर देयर विल बी अ डिस्क्रिपेंसी फाउंड by the proper officer or there will not be any discrepancy found by the proper officer. In case there is no discrepancy, release order has to be passed in MOV 5 and goods shall be released. In case a discrepancy has to be is found by the proper officer, 2 things has to be done. One, the goods has to be detained under section 129 by passing an order in MOV 6. The second, a notice has to be issued ascertaining the amount of tax as well as the penalty. Against the notice, you can file your objections as in the form of reply to SCN. Once your reply has been filed, by affording a proper opportunity of being heard to you, an order in MOV 09 will be passed by the proper officer, after which either you can pay the dues or you can file an appeal against the order. In case of detention, either you can pay it provisionally or finally, like we just discussed, or you can litigate the case. What happens in most of the practical cases is, once an order is passed, either before the order or immediately after the order, since there is a time limit of 14 days after passing of detention order in MOV 6, अगर 14 दिन तक आपने नहीं करा तो सर कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स आपकी जो है इनिशिएट हो जाती है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, आप 14 दिन के अंदर अंदर टैक्स जमा करा देते हैं। 2 कारण है, पहला आपका कॉन्फिस्केशन में चला जाएगा, दिक्कत बढ़ जाएगी सर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। और दूसरा, आपको गुड्स 14 दिन तक आप वहां पे खड़े करके नहीं रख सकते, आपको गुड्स सामने वाले बायर को पहुंचाने हैं जिसको आप माल बेच रहे हैं।
तो उस केस में आप या तो ऑर्डर से पहले या बाद में जमा करा देंगे। उसमें आपको मैंने बताया कि 3 मैकेनिज्म है, या तो आप पे करके खत्म करिए DRC3 के थ्रू, कैश या क्रेडिट लेजर के थ्रू, या फिर आप प्रोविजनली पे करिए। DRC3 में लिख दीजिए कि मैं अंडर प्रोटेस्ट जमा करा रहा हूं, मैं अपील इसके अगेंस्ट में फाइल कराऊंगा, मेरे को गुड्स रिलीज कराने इसलिए मैं जमा करा रहा हूं। या तीसरा ऑप्शन आपके पास है सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड, जो कि जनरली हाई कोर्ट से जाके आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अब सर एक बारी हमने अब सेकंड स्लाइड में बात करी डिटेंशन की। अब थर्ड स्लाइड को मैं 1 मिनट में सम अप करूं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आपका सेक्शन 130 या तो 129 के थ्रू इन्वोक हो सकता है या डायरेक्टली भी इन्वोक हो सकता है। कोई ऐसे केसेस हैं जो ई-वे बिल के नहीं है, आपके यहाँ पे रेड पड़ी, सामने वाले को लगता है कि कॉन्फिस्केट करने की जरूरत है, तो वो आपके गुड्स कॉन्फिस्केट कर लेता है। आप देखेंगे पुरानी रिजीम में भी एक्साइज कस्टम्स में भी बहुत बार गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाते थे, आपका स्टॉक कॉन्फिस्केट हो जाता था। तो सेक्शन 130 एक बार इन्वोक हो गया, 14 दिन में आपने पे नहीं करा MOV 6 के, तो आप पे जो है एक नोटिस आएगा MOV 10 में, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपके गुड्स कॉन्फिस्केट क्यों ना हम कर लें। दिस इज अगेन अ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 130 in MOV 10. After that you can file your reply in the form of reply to SCN. Thereafter an opportunity of being heard will be provided to you. After that either the goods or the conveyance or both can be confiscated by way of an order in MOV 01. MOV 01 के बाद आपको एक टाइम फ्रेम दिया गया है जो कि मैक्सिमम 3 महीने का है। टाइम फ्रेम आपका प्रॉपर ऑफिसर आपको देगा, लेकिन वो 3 महीने से ज्यादा का आपको नहीं दे सकता। अगर आपने एक बार कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास हो गया और आप हाईकोर्ट भी नहीं जा रहे, मान लीजिए उसको लिटिगेट नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपने 3 महीने में जमा नहीं कराया तो वो सरकार की प्रॉपर्टी बन जाएगी। सरकार उसको ऑक्शन के थ्रू बेच के आपके ड्यूज रिकवर कर लेगी। और अगर आपने 3 महीने में उसको जमा करा दिया तो अगेन वही MOV 5 में जो है आपको रिलीज ऑर्डर पास करके गुड्स रिलीज कर दिए जाएंगे। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हमने प्रोसीजर अभी सर पिछले 10-12 मिनट में डिस्कस किया, जिसमें हमने पहला पार्ट इंटरसेप्शन का डिस्कस किया, MOV 1 स्टेटमेंट, MOV 2 फिजिकल इंस्पेक्शन का ऑर्डर, EWB 3 का पार्ट ए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, MOV 4 फाइनल रिपोर्ट और EWB 3 का पार्ट बी फाइनल रिपोर्ट, जो कि कॉमन पोर्टल पे आएगा। उसके बाद हमने डिटेंशन डिस्कस किया। डिटेंशन में हम लोगों ने सबसे पहला MOV 6 डिस्कस किया, जो कि डिटेंशन ऑर्डर है। MOV 8 डिस्कस किया, जिसमें बॉन्ड फर्निश किया जाता है। MOV 7 डिस्कस किया, जिसमें SCN इशू किया जाता है टैक्स पेनल्टी का। MOV 9 डिस्कस किया, जिसमें ऑर्डर पास होता है फाइनली आपकी टैक्स और पेनल्टी को असरटेन करते हुए। उसके बाद हमने अपना तीसरा टॉपिक डिस्कस किया, तीसरा प्रोसीजर डिस्कस किया कॉन्फिस्केशन का, जिसमें MOV 10 हमने सबसे पहले डिस्कस किया नोटिस। MOV 11 हमने डिस्कस किया ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस और बोथ। इन तीनों प्रोसेस में हमने एक MOV 5 भी डिस्कस किया, जो कि रिलीज ऑर्डर है, जो कि आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, आफ्टर डिटेंशन और आफ्टर कन्फिस्केशन अगर आपके गुड्स रिलीज होते हैं तो MOV 5 में जो है रिलीज होंगे। With this, we have concluded, I would say, the first part of today's discussion, which was the background. Although the background of e-way bill is very, very lengthy. कहने को तो सर 5-6 रूल्स ही हैं, प्रोविजन ही हैं, सेक्शंस ही हैं, लेकिन सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, बैकग्राउंड जो है पूरा इसका काफी लेंदी है। फॉर्म्स है मल्टीपल, EWB 1, 2, 3, 4। तो हम लोगों ने जो है, जो इंपॉर्टेंट है आज की चर्चा के लिए, आज के टॉपिक के लिए, आज की बाउंड्रीज के लिए ई-वे बिल की, वो हमने डिस्कस करी। विद दिस बैकग्राउंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, व्हिच इज द एनालिसिस ऑफ सम रीसेंट जजमेंट्स। In today's judgments topic, we have bifurcated the part in two. One is whether valuation of goods can be made ground for detention of goods, and the other, what are the minor discrepancies as mentioned in circular of 2018. सबसे पहला जजमेंट आज का है केपी सुगंध लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट बाय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। 16 मार्च 2020 को जो है जजमेंट प्रोनाउंस की गई। फैक्ट्स केस के ये थे कि पेटिशनर ने गुड्स, पान मसाला और तंबाकू, टोबैको प्रोडक्ट्स डिस्पैच करे रायपुर में अपने एक कस्टमर को, जिसमें इनवॉइस और ई-वे बिल था। गुड्स को इंटरसेप्ट किया गया
कन्वेंस इंचार्ज ने इमीडिएटली इनवॉइस एज वेल एज ई वे बिल प्रोड्यूस कर दिया, डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग द ई वे बिल एंड इनवॉइस विद द कन्वेंस दैट वाज इन मूवमेंट. Like we just discussed that section 68 only talks about the proceedings that has to be done in order to verify whether the goods that are in movement are accompanied with proper documents. तो सर इस केस में क्या हुआ कि गुड्स जा रहे थे मूवमेंट में, पकड़े गए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स सारे दिए गए, कहीं पे ये एलिगेशन नहीं लगाई गई कि डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं. डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर माने गए, प्रॉपर ऑफिसर ने एक्सेप्ट किया कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, लेकिन उसने फिर भी डिटेन किया, सीज किया व्हीकल को और गुड्स को ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज अ वैल्यूएशन डिस्क्रिपेंसी इन द गुड्स. फॉर एग्जांपल, प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आप जो गुड्स लेके जा रहे हो एज पर इनवॉइस एंड एज पर द ई वे बिल, आपके गुड्स आपने बताए हैं कि 15 लाख के गुड्स हैं, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन कि वैल्यूएशन रूल्स लगा लूगू के और प्रोविजंस लगाते हुए, मार्केट वैल्यू लगाते हुए आपके जो गुड्स हैं ये 25 लाख के बनते हैं, तो आपने 10 लाख रुपए अपने गुड्स को अंडर वैल्यू किया हुआ है, तो आप जो है 10 लाख रुपए पे जो है आप इवेजन ऑफ टैक्सेस कर रहे हो. तो इस केस में केपी सुगंध में भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के का जो केस है उसमें भी यही फैक्ट्स थे कि प्रॉपर ऑफिसर को लगा आप अंडर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स कर रहे हो और उसने आपका इवेजन ऑफ टैक्सेस को रोकने के लिए सेक्शन 129 में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी. Petitioner approached the jurisdictional high court. High court का क्या कहना है? Mainly because the manufacturer sells his products to its customers at a price lower than MRP, as such cannot be made ground on which the product or the vehicle could be seized or detained. So Honorable Chhattisgarh High Court categorically held that just because I am selling my goods at a price lower than MRP, at a price which should be the market value, it cannot be made ground for detention of e-way bill. It was further held that since the documents which has to be accompanied with the conveyance in movement were found proper, there is no allegation with respect to the deficiency in any documents. The only deficiency is regarding the sale price. So a very good observation that was given by Chhattisgarh High Court is that कि सर डॉक्यूमेंट्स में कमी हो तो आप उसको डिटेन करके रखिए अपने पास, कन्फिस्केट कीजिए, सारा प्रोसीजर फॉलो कीजिए. जब वैल्यूएशन ऑफ गुड्स में प्रॉब्लम है तो आप एक सैंपल ड्रॉ कर लीजिए, आप फोटो खींच लीजिए, सैंपल ड्रॉ कर लीजिए, 10 तरीके हैं आपके पास करने के लिए, और आप उसके बाद एक एससीएन इसको इशू कर दीजिए हाथ के हाथ कि हमारे हिसाब से 25 लाख बनता है, आपका 15 लाख है, 10 लाख रुपए पे टैक्स दो. वो अपना केस लड़ता रहेगा. आप जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को जो है केस रेफर करीजिए और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के द्वारा केस लड़ता रहेगा. आपको डिटेन करने से क्या पर्पस अचीव होगा कि आप बोलेंगे कि नहीं 25 के बनते हैं, वो 15 के बोलेगा, आप दोनों लड़ते रहेंगे और डिटेन करे रखेंगे गुड्स को. तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है कि वैल्यूएशन ऑफ गुड्स आपकी, ये बिल्कुल जायज डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन फॉर दिस द मैटर मे बी रेफर्ड टू द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर विद अ प्रॉपर रिपोर्ट दैट वी इंटरसेप्टेड द व्हीकल इन मूवमेंट, वी ड्रॉ द सैंपल्स ऑफ द गुड्स दैट वर बीइंग मूव्ड, एंड अकॉर्डिंग टू अस द गुड्स has to be valued, should be valued at 25 lakhs. However, the goods were valued at 15 lakhs and you have paid the taxes on 15 lakhs. So you have evaded the duty of tax on 10 lakhs of undervaluation. तो आप ये जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को लिखिए, वो करेगा एससीएन, वो करेगा ऑर्डर, वो रिकवरी करेगा. आप उसके लिए डिटेन नहीं कर सकते हैं. इसी सेम मुद्दे पे सर जैसे केपी सुगंध का जजमेंट आया, सेम उस पे अल्फा ग्रुप का जजमेंट केरला हाई कोर्ट का और सकल नाजा मोहम्मद का जजमेंट गुजरात हाई कोर्ट का 2020 में दोनों जजमेंट जो है आए, जिसमें बोला गया कि डिस्क्रिपेंसी इन वैल्यूएशन ऑफ गुड्स शुड नॉट बी मेड ग्राउंड फॉर डिटेंशन ऑफ ई-वे बिल ऑफ कन्वेंस एंड द गुड्स अंडर जीएसटी एक्ट. नाउ कमिंग टू द सेकंड जजमेंट on the same topic, discrepancy in valuation of goods, Karnataka traders versus state of Gujarat, इसमें दो डिस्क्रिपेंसी निकाली गई थी, जिसमें से एक डिस्क्रिपेंसी इन वैल्यूएशन ऑफ गुड्स था, दूसरा बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिस्क्रिपेंसी निकाली गई जिसपे क्या बोला गया हम डिस्कस करेंगे. पहला कि व्हीकल जो है वो दूसरी दिशा में मूव कर रहा था जिस दिशा में उसको जाना चाहिए. मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं. कंसाइनर ने कंसाइनी को माल बेचा दिल्ली से गुड़गांव. अब सर दिल्ली से गुड़गांव आने के जो लॉजिकल दो रास्ते हैं वो या तो NH8 से आए, जो जनरली फॉलो किए जाते हैं, या तो NH8 से आए
महिपालपुर से आए, द्वारका से होते हुए आए। अब ये एक जनरल रास्ते हैं जो हर कोई फॉलो करता है, जो कि लॉजिकल भी है, सीधा सीधा रास्ता है। अब इस केस में क्या हुआ कर्नाटका ट्रेडर्स के केस में, कि गुड्स लेके वो चला गया पानीपत साइड पे, इधर सोनीपत साइड पे, और केएमपी से होता हुआ मानेसर घूमता हुआ गुड़गांव आ रहा है। अब उसको पकड़ लिया वहां पे सोनीपत साइड पे, मूर्थल के आसपास, और उससे बोला कि यार तूने दिल्ली से गुड़गांव जाना है, तू चंडीगढ़ की तरफ क्यों जा रहा है? तो तू, क्योंकि तूने रूट जो है गलत अडॉप्ट किया, आपने रूट जो है गलत अडॉप्ट किया, तो ये बोला गया कि आप तो जो है इवेजन ऑफ टैक्सेस कर रहे हो। और सेकंड डिस्क्रिपेंसी ये लगाई गई कि गुड्स की वैल्यू 286 डिक्लेयर करी गई, जबकि मार्केट वैल्यू जो है गुड्स की 330 रुपीज है। तो अगेन सेम मुद्दा कि डिस्क्रिपेंसी इन वैल्यूएशन गुड्स वर मेड ग्राउंड फॉर डिटेंशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस। अब इसमें क्या बोला गया कि मेनली बिकॉज द डायरेक्शन प्रेफर्ड बाय द पेटिशनर्स फॉर डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट टू द प्लेस डिस्टाइंड फॉर एन इन्फ्रेंस कैन नॉट बी ड्रॉन विद रिगार्ड टू द इंटेंशन ऑफ द पेटिशनर्स टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। अब सर ये जो पहले दो पैराज मैंने यहाँ पे हेल्ड में डाले हैं, ये एक बहुत अच्छी हमें ऑब्जर्वेशन देता है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट की, कि आपका इस जजमेंट का क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं कि आपका रूट जो है, आप दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए NH8 नहीं ले रहे, केएमपी से होते हुए मानेसर पलवल से घूमते हुए आप जो है आ रहे हैं गुड़गांव। ये आपका बिल्कुल सही ग्राउंड हो सकता है कि इवेजन ऑफ टैक्सेस हो रहा है, लेकिन सोल ग्राउंड नहीं हो सकता सर। मैं रिपीट करता हूं, चेंज इन रूट फॉर डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट कैन बी अ ग्राउंड showing that there is an evasion of taxes, that the goods are being disposed of at some other location instead of disposing of at Gurgaon, but it cannot be the sole ground for detention of e-way। मतलब कि सर आप इसके साथ आपको कोई प्रूफ मिलता है कि नहीं जी ये तो केएमपी का बहाना बना रहे हैं, ये तो आगे जाके पानीपत में माल छोड़ के आने वाला था गुड़गांव के नाम से, तो ये तो फेक इनवॉइस का काम चल रहा है या ये तो गड़बड़ काम चल रहा है, और आपको उसका कोई और प्रूफ मिल जाता है, तो आप ये बोलिए कि देखिए जी हमें प्रूफ मिला कि दिल्ली से पानीपत जो है माल जाने वाला था और हमने रास्ते में पकड़ा भी मूर्थल में, तो आपका माना जाएगा कि ठीक है जी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास प्रूफ कोई भी नहीं है और आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि रूट उसने जो है दूसरा ले लिया, ये दिल्ली से गुड़गांव डायरेक्टली NH8 से क्यों नहीं जा रहा था, ये केएमपी से घूम के क्यों जा रहा था, तो वो इट कैन नॉट, द सोल ग्राउंड कैन नॉट बी मेड रीजन फॉर डिटेंशन ऑफ गुड्स एंड कंसाइनमेंट। तो ये जो है गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि आपको सिर्फ ये नहीं माना जाएगा कि चेंज ऑफ रूट जो है सिर्फ आपका बोला जाएगा कि इसकी वजह से इवेजन ऑफ टैक्सेस हो रहा था, आपको तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोई और भी डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंसेस हैं जिससे प्रूव हो कि ये माल गुड़गांव जा ही नहीं रहा था, ये माल कहीं और जा रहा था, जिसकी वजह से हमने रास्ते में देखो पकड़ा और हमने पाया कि ये तो माल डाइवर्ट किया गया है। अब इसके साथ हम अपना पहला टॉपिक खत्म कर चुके हैं जजमेंट्स का। सेकंड टॉपिक हमारा माइनर डिस्क्रिपेंसीज है। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि जो सर्कुलर हमने 2019 का हमने सर्कुलर देखा अभी, वो सर्कुलर को हमें कैसे पढ़ना है, व्हाट इज द लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ दैट सर्कुलर एंड हाउ लिबरल व्यू वी हैव टू टेक इन रीडिंग दैट सर्कुलर। We are going to discuss two judgments in this topic. One is of Greenlights Power Solutions versus State Tax Officer. This judgment is of Honorable Kerala High Court, a very recent judgment of 6th April 2022. In this case, the goods were being moved from Ernakulam to Assam. During the course of movement, the goods were intercepted by the proper officer and detention proceedings were initiated under section 129 by noting a discrepancy. What was the discrepancy? The discrepancy was that कि गुड्स जो है 2 मार्च 2021 को ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और इनवॉइस की डेट लिखी हुई है 3rd February 2021। तो अब सर इसमें ध्यान दीजिएगा कि 2/3/2021 और 3/2/2021, तो डेट सिर्फ उल्टी लिखी गई है। डिपार्टमेंट ने लेकिन बोला कि नहीं, आप एक जगह पे इनवॉइस की डेट लिख रहे हो 2 मार्च 2021 और एक जगह पे इनवॉइस की डेट लिख रहे हो 3 फरवरी 2021। तो पेटिशनर ने बोला कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, एक बोनाफाइड मिस्टेक है, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो DDMMYY की जगह MMDDYY लेता है, तो इसलिए क्या है कि वो 3/2/2/3 हो गया।
आप समझ रहे हैं सर, क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई भी बहुत ज्यादा इसमें इवेजन ऑफ टैक्सेस नहीं है, कोई भी इसमें मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, सिंपल 2-3-3-2 हो गया। तो इसलिए क्या है कि उसने ये प्रॉपर प्रूफ दिखाया कि मेरा जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से डीडीएमएम को एमएमडीडी ले लेता है, तो इसलिए मेरा जो है डेट गलत चला गया इनवॉइस में, ई वे बिल में मैंने सही डेट डाला, और जिसकी वजह से मेरा कोई इवेजन ऑफ टैक्सेस नहीं है। Petitioner pleaded that since the goods were urgently required, petitioner was compelled to obtain release of goods by furnishing bank guarantee. According to the petitioner, unless the bank guarantee is released, petitioner would be put to great prejudice. petitioner ने साथ साथ ये बोला कि बहुत माइनर नेचर का है मिस्टेक, आप इतनी ह्यूज पेनल्टी हम पे ना लगाएं। Honorable Kerala High Court relied upon circular that we just discussed, which is dated 14th of September 2018, and held that reading of the above statutory circular reveals that the purpose of issuing such a circular was to mitigate the hardships being caused to taxpayer for minor discrepancies which had no bearing on the liability to tax or on the nature of goods being transported. तो मैंने जैसा अभी आपको बोला कि हम जजमेंट से ये समझेंगे कि सर्कुलर को पढ़ना कैसे है, तो इस जजमेंट में केरला हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकल फाइंडिंग दी, एक स्पेसिफिक फाइंडिंग दी कि इस सर्कुलर को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि यह सर्कुलर लाया गया था टू मिटिगेट दी हार्डशिप्स which has been caused, which was being caused to the taxpayers due to certain minor or clerical discrepancies. जैसे यही है 2-3 का 3-2 हो गया, 3-2 का 2-3 हो गया, तो ये जरा सा डेट का जो चेंज हो गया, इसको ये नहीं बोला जाएगा कि आप जो है इवेजन ऑफ टैक्सेस कर रहे हैं, आपकी लाइबिलिटी ऑफ गुड्स जो है, लाइबिलिटी टू पे जीएसटी, इससे इंपैक्ट नहीं हो रही है। तो इसके लिए बोला गया कि आपको जो है सर्कुलर को एक इलैबोरेटिव वे में पढ़ना है, आपको सर्कुलर को इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि ये सिर्फ 6 ही केसेस को डील करता है, ये ऐसे 6 की जगह 60 केसेस को डील करता है जहां पे कोई क्लरिकल मिस्टेक हुई है। इसके साथ साथ बोला गया कि सर्कुलर जो है बाइंडिंग होता है टैक्स ऑफिसर्स के साथ। माइनर डिस्क्रिपेंसीज कैन नॉट बी पेनलाइज कॉन्ट्ररी टू द मोड एंड प्रोसीजर कंटेम्पलेटेड अंडर सर्कुलर। अब ये जो फाइंडिंग मैं पढ़ के सुना रहा हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है केरला हाई कोर्ट की, हाउएवर द सर्कुलर रेफर्स टू ओनली 6 इंस्टेंसेस ऑफ माइनर डिस्क्रिपेंसीज। Strictly speaking, the present situation is not covered by the 6 instances mentioned in the circular. तो केरला हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो केस है 3-2 को 2-3 हो गया, ये केस तो सर्कुलर में कवर्ड ही नहीं है, जो 6 केसेस बोलता है उसमें कवर्ड ही नहीं है। लेकिन एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन देते हुए ये वाली बात बोली गई कि एनालाइजिंग द 6 instances reveals those discrepancies which have no bearing on tax liability and are caused on account of bona fide mistake like typographical errors or otherwise are regarded as minor discrepancies. In fact, the situation of the present case can be even brought under the broader umbrage of clause D, जो बोलता है आपका 1 या 2 डिजिट जो है डॉक्यूमेंट नंबर के अगर गलत हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट नंबर के बोलता है, डॉक्यूमेंट की डेट के नहीं बोलता। तो हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, अगर हम एक ब्रॉडर सेंस में बात करें तो ये डॉक्यूमेंट नंबर की ही बात करेगा और आपका जो है इसमें कवर हो जाएगा, और उसकी वजह से आपका जो है माल छोड़ दिया गया। इट वॉज हेल्ड बाय ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट कि इतनी सी उसके लिए आपका जो है माल नहीं डिटेन होना चाहिए, आपका माल छोड़ा गया। इट वॉज ऑर्डर टू बी रिलीज्ड। नाउ द सेकंड एंड लास्ट जजमेंट फॉर द डे इज टेक्नो स्टील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। 30 मार्च 2022 को जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जजमेंट आई, इसी साल की जजमेंट है। अब इस जजमेंट में सर एक बहुत मेजर गलती हुई है एसएससी से, लेकिन इस गलती को भी बोला गया कि माइनर डिस्क्रिपेंसी है और इस पर पेनल्टी 500 रुपए की लगा के छोड़ दिया गया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा। पेटिशनर ने एक अग्रीमेंट एंटर किया रेवा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो रहता जबलपुर में था लेकिन गुड्स जाने थे रेवा में। तो ध्यान रखिएगा कि जिसको माल जाना है उसका रजिस्टर्ड एड्रेस जबलपुर का है, लेकिन अब उसने अपनी दूसरी ब्रांच में रेवा में जो है डिलीवरी बोली कि आप मेरी फैक्ट्री में डिलीवरी कर दीजिए जो रेवा में है। अब सर अगर आप गूगल मैप्स पे देखें तो जबलपुर और रेवा में कम से कम 200-250 किलोमीटर का गैप है। तो जो हमने अभी 6 इंस्टेंसेस पढ़े उसमें यह था कि अगर आपने पिन कोड गलत लिखा लेकिन अगर आपका ई वे बिल एक्सटेंड नहीं हो रहा तो माइनर डिस्क्रिपेंसी माना जाएगा, जो कि सेकंड पॉइंट था। और थर्ड डिस्क्रिपेंसी ये बताई गई थी कि अगर आपने एड्रेस गलत लिख दिया लेकिन लोकेलिटी सही लिखी है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया C9 का C10 कर दिया लेकिन सुशांत ब्लॉक फेज 1 सेक्टर 43 C ब्लॉक सब ठीक लिखा, तो आपका जो है माइनर डिस्क्रिपेंसी माना जाएगा। इस केस में सर ना तो पिन कोड गलत है, मतलब पिन कोड गलत है लेकिन ई वे बिल एक्सटेंड हो रहा है, वैलिडिटी एक्सटेंड हो रही है। 240 किलोमीटर का जब गैप है तो वैलिडिटी पे भी फर्क आ रहा होगा, और लोकेलिटी का भी सिर्फ इशू नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा शहर ही बदल गया।
तो इस केस में उसने क्या करा कि इनवॉइस की सारी डिटेल सही लिख दी, लेकिन ई वे बिल में डेस्टिनेशन जबलपुर डाल दी रेवा की जगह। तो जहां पे जिसके पास जाना था गुड्स, रेवा इंजीनियरिंग, उसका जो एड्रेस है जबलपुर का वो डल गया, बजाय कि उसकी फैक्ट्री का रेवा का डलना था। तो ई वे बिल में गलती है, इनवॉइस सब सही है। रेवेन्यू ने 129 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला कि दिस इज अ वेरी बोनाफाइड मिस्टेक। देख के पता चल रहा है कि जिसके पास माल जाना है, जो बायर है, उसका एड्रेस क्योंकि जबलपुर का, तो गलती से जबलपुर डल गया रेवा की बजाय। तो दिस इज अ माइनर डिस्क्रिपेंसी, दिस इज अ बोनाफाइड डिस्क्रिपेंसी which is not resulting in any evasion of taxes, and therefore the detention order was set aside and minor penalty was imposed as per the circular that we just discussed. With this, I conclude today's session, and I thank all of you to joining us today, to join us today at this evening. Thank you, everyone. बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी, काफ़ी अच्छा सेशन रहा आज का, और थैंक यू वंस अगेन टू अनमोल जी and all participants also, and let's we meet in the next session of the Taxo Prime Time in next Friday at the same time. Thank you to all.